In the latest, sources say that the police officials have registered an impact. But let's begin with the big story of the day that's coming in from Uttar Pradesh. The Kawad Yatra is set to start from the 22nd of July, and ahead of the Yatra, the state administration in Uttar Pradesh is taking measures to heighten the security to ensure smooth and hassle-free arrangements for the Yatris. But in this attempt, the Muzaffarnagar administration has issued an order asking hotels, dhabas and carts on the Kawad Yatra route in Muzaffarnagar to voluntarily display the names of their owners and properties. Now, the administration says that during the month of Shravan, Kawad Yatris follow certain dietary restrictions, and they generally don't prefer buying from stores where the food that is non-fast compliant is sold. So this move is to ensure that there is no confusion for the Yatris. But listen in to what the SSP of Muzaffarnagar said while speaking about the order that has now snowballed into a big political controversy. देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। So this was the officials' reaction. Many in the opposition think that this is another bid by the state to target the Muslim community. In fact, the AIMIM chief, Asaduddin Owaisi, has gone on to claim that this move is akin to apartheid in South Africa. And in fact, he also continued to compare it with Nazi Germany. SP chief and former Uttar Pradesh chief minister Akhilesh Yadav said that the court must take note of this move, which is aimed at creating communal disharmony. And lyricist Javed Akhtar, who is a vocal critic of the BJP government, has commented that in Nazi Germany, they used to make only a mark on particular shops and houses. The TMC MP, Saket Gokhale, has written to the NHRC seeking disciplinary action against the SSP who issued the order and has called for the withdrawal of the same. The Human Rights Panel is yet to respond to the letter written by TMC Saket Gokhale after the political uproar. The police has now emphasized that they've asked the shop owners to voluntarily display the names of their establishments to help the Kawad Yatris, and that this is a practice that was followed in the past as well. Listen in to the political reactions. सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस नकारात्मक राजनीति को करती है, अगर उसी नकारात्मक राजनीति को अधिकारी आगे बढ़ाने लगेंगे, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाने लगेंगे, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस का काम है कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। पुलिस का ये काम नहीं है कि वो ये तय करे कि दुकानों पे लोग किस नाम से, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वो उनका अधिकार है कि वो अपनी दुकान का नाम क्या रखते हैं, दुकान में अपना नाम लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। अगर कोई नियम हो कि सबको लिखना है बाहर अपना नाम, तो ये कौन तय करेगा? पुलिस विभाग तय करेगी। मैं समझता हूँ ये नगर पालिका या नगर निगम तय करेगी या सरकार का कोई आदेश होगा, वो पुलिस विभाग का आदेश नहीं हो सकता। तो ये सरकारी एजेंडे को, सरकार को खुश करने का केवल एक तरीका मात्र है। समाजवादी पार्टी समझती है कि ऐसे अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे काम करते हैं, उनको सोचना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता ने उनकी जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। निश्चित रूप से ये पुलिस का ऑर्डर नहीं है, ये तो सरकार की मंशा, सरकार का इरादा है। और सरकार का इरादा है, जो सरकार का अपरोक्ष जो एजेंडा है, तो जिस माने प्रजातंत्र में हम जातिवाद को खत्म करने की बात करते हैं, जातिवाद को समाप्त करने की बात करते हैं, उसको कमजोर करने की बात करते हैं कि कोई ऐसा सिंबॉलिक काम नहीं होना चाहिए जो किसी भी जात का इंडिकेशन हो। तो एक तरफ तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की बातें हैं, और दूसरी तरह अपरोक्ष रूप से जो है क्या जरूरत है, हम भूल गए कि दुकान किसकी, हम नहीं पूछते कि चमार की है कि मुसलमान की है, किसकी है। उसमें कोई भी पंडित ठाकुर सब जाकर के मैंने बैठता है, खाना खाता है। Now the Congress party has called for action against Muzaffarnagar police for issuing the Kawad order that has now triggered a political face-off. The UP Congress chief Ajay Rai has said that the order must be taken back and that police officials must be dismissed immediately.
असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया, अखिलेश यादव ने भी कहा है कि जिनके पेट नेम्स हैं, छोटू नाम है, फतेह नाम है, इनसे किस तरह की पहचान होगी और कोर्ट जो है इसका स्वतः संज्ञान लेकर ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करे। बिल्कुल इसको वापस लेना चाहिए और तत्काल ऐसे अधिकारियों को सेवा नियमावली के तहत इनको बर्खास्त करना चाहिए। Let's go across to my colleague Adib joining us on the broadcast with the details of the political controversy that's breaking out. Adib, take us through the details of how it began. The police officials, of course, asked for the names to be given, but they've also issued a clarification now that it is voluntarily. But the opposition says that this is another way of targeting the minorities. Well, Pratibha, see, Muzaffarnagar police first issued an order that all the shops and eateries that are coming in the Kanwar Yatra Marg, they have to put up the name of the owners on the shop, on the gate and the brand name. In fact, they have to put the name of the owner. And after that, the controversy sparked. First, it was Assaduddin Owaisi who took it to social media and criticized the Muzaffarnagar police for giving this kind of order. Then it was former Chief Minister Akhilesh Yadav who has said that if someone has a pet name, then how one can identify. And the court should take action, suo motu cognizance, and should take action against these kind of police officers. And now it's Congress Chief Jai Rai has said that an action should be taken against the police officers, and these kind of orders should be withdrawn immediately. Overall, the Muzaffarnagar police has now clarified. Muzaffarnagar police is saying that it's a voluntary order. They are not compelled to put up the names, and if they want, they can put up the names. But they have also said in the order that we have done it in the past, and this is nothing new. But just to maintain the law and order in the city, in the districts, we have issued this order. Back to you, Pratibha. Okay, all right. Adib, stay with us. Let's talk about the political reactions that are coming in from the BJP as well, because the BJP has reiterated that such steps are only taken to ensure a peaceful atmosphere and that the opposition need not politicize every decision of the government. देखिए, ये एक प्रशासनिक विषय है, सुरक्षा और संवेदनशीलता का विषय भी हो सकता है। कहीं पर कोई ऐसी चीज सिक्योरिटी रिलेटेड होती है तो वो सरकार अपने, मगर मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, ये पता नहीं क्यों हमारे विरोधी कोई भी विषय होता है वो नाम और पहचान छुपाने वालों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं। विषय कोई भी हो, मतलब वो आसाम से लेके केरल तक हो, वो विषय सुरक्षा से लेके केरल हाई कोर्ट के द्वारा यूज किए गए और वीएस अच्युतानंदन के द्वारा यूज किए गए लव जिहाद का हो, मगर पहचान छुपाने वालों के लिए इतने अरमान दिल में क्यों छुपे रहते हैं। कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं, उनकी कई मान्यताएं होती है, उनको ये एक अवसर मिले कि वो तय कर पाए कि उनकी मान्यताओं के अनुसार कोई दिग्भ्रमित होने की सिचुएशन ना बने और उसके हिसाब से वो निर्णय कर सके कि उनको कहां से क्या प्रोक्योर करके कुछ खाना है, पीना है। तो भाई वो सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा खतरा, लोकतंत्र खतरे में, नफरत आ गई है, हेट्रेड आ गया। ये किस प्रकार से बोला जा रहा है? क्या किसी पर रोक लगाई जा रही है? क्या ये कहा जा रहा है कि आप कांवड़ियों को सामान सामग्री नहीं बेच पाएंगे? यदि आप सारी कंप्लायंसेस करते तो बेचिए, कौन मना कर रहा है? जो मुस्लिम समाज के लोग होटल और ढाबे चलाते हैं, उन पे वो हिंदू नाम रख लेते हैं और नॉन वेज बेचने का काम करते हैं। ये बहुत ही आपत्तिजनक है। इसके कारण से जो कांवड़ी वहां से निकलते, कांवड़ी हो या अन्य धर्म प्रेमी हो, जैसे हमारे यहाँ चारों धाम की यात्रा चलती है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, लोग आते हैं तो वहीं से निकलते हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ, नॉन वेज खाने वाले नॉन वेज अपना ढूंढ लेते हैं, नॉन वेज कहाँ मिलेगा, ये विषय नहीं। पर जो शुद्ध रूप से शाकाहारी हैं, उनको वो भगवान शिव की दुकान है, शिव ढाबा है, वैष्णो ढाबा है, गणपति ढाबा है या खाटू श्याम ढाबा है, तो ऐसा मिलाकर नॉन रखते हैं और उन पर फिर नॉन वेज भी बेचते हैं, जिसके कारण से विवाद होता है, झगड़े की संभावनाएं बनती है और प्रशासन के लिए काम मुश्किल हो जाता है उस समय। तो उसको मैंने कहा है कि इस प्रकार का बहुत ही आपत्तिजनक है। मुस्लिम समुदाय के लोगों से मैंने निवेदन किया है, आग्रह किया है और प्रशासन को इस बात के लिए आगाह किया। मुझे लगता है कि हर वर्ष अनेकों समस्याएं आती हैं किसी कार्य के अंदर और अगले उसमें निदान किया जाता है। पूर्व के यात्राओं में ऐसी समस्याएं आई थी, जैसे वहां पे लगा कि भाई कोई दंगा भी होने की आवश्यकता साधन बन जाते हैं, किसी और भी कारण से व्यवधान पैदा होता है, तो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए
और नाम लिखना कोई बात नहीं है, प्रोप्राइटर है, मालिक अपना नाम लिखना चाहिए, उसमें क्या समस्या है। लेकिन वो दुकान वाले तो लिखने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं उन लोगों को परेशानी हो, ओबीसी जैसे को। Now, BJP allied JDU has also cautioned that there should be no religious discrimination in the garb of Kawar Yatra. JDU's KC Tyagi says that for security and law and order, the UP police is fully independent to adopt measures, but they should ensure that it goes on peacefully. कांवड़ यात्रा हिंदू मुस्लिम दोनों का संयुक्त उपक्रम है। दुकान लगाने वाले अधिकांश जो हैं वो सब मुस्लिम हैं। हाँ, कोई असामाजिक तत्व इसमें घुस करके कोई विवाद न पैदा करने का प्रयास करे, उतनी सुरक्षा जरूरी है, लेकिन धार्मिक आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। पर क्या उनके आई कार्ड्स लेना या उनका पहचान पत्र लेना ये जायज है? उत्तर प्रदेश पुलिस बगैर धार्मिक आधार पर किसी भेदभाव के सुरक्षा के संपूर्ण इंतजाम करने के लिए स्वतंत्र है। More reactions coming in on that story. Ex-UP Minister Mohsin Raza has also questioned the intent of some of the shopkeepers who hide their identity, and he says when there's no discrimination in the country, why should people hide their real identity? Listen in. नहीं, ये फरमान नहीं है। आप अपनी आइडेंटिटी कोई भी इंसान ना छुपाए। मैं मोहसिन रजा हूं, अगर मैं दरवाजे पर महेश लिखवा दूं तो कैसे चलेगा भाई? यहां तो आप मेरे घर आए हैं ना, तो मोहसिन रजा साहब के ही तो घर आए हैं ना। तो इस तरह से अगर आप अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हैं? ये देश हमारा जो है सबको मान्यता देता है ना। यहां तो भेदभाव सरकार कर नहीं रही, तो हम क्यों भेदभाव करें या कोई और भेदभाव करे क्यों? इसलिए इस तरह की चीजों की जरूरत पड़ी है, क्योंकि लोग इस तरह की चीज करते हैं। बहुत से लोग हैं अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी तरह के तरीके से मानते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग सबका सम्मान करते हैं और सबको सुरक्षा व्यवस्था देते हैं, बिना भेदभाव के कोई काम करते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों को इसमें भी कुछ न कुछ तलाशना है। ये सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, ये कोई और इसको आस्था से जोड़कर मत देखिए। Now, many shops, eateries and food carts have already started displaying their names on the route of the Kawar Yatra in Muzaffarnagar. The police have said that this is being done by the shop owners on their own. In fact, even the DIG of Saharanpur Range, Ajay Sahni, has informed this order to display the names of owners of dhabas, restaurants and eateries along the entire route has been issued in 3 districts of Saharanpur Range. They are Saharanpur, Muzaffarnagar as well as Shamli. This is being done so that the yatris don't face any problem or confusion and that there is no inadvertent law and order situation. Listen in to what he said. ये पूर्व में जैसा कि देखा गया है कि कई बार विवाद की स्थिति पैदा होती है। जो भी कांवड़ रोड पे होटल है, ढाबे हैं, यहाँ पर रेट लिस्ट नहीं लगी होती है। साथ ही जिसका ढाबा है, होटल है, कई बार ये समस्या उत्पन्न हुई कि नॉनवेज वहाँ पे मिल रहा है, जिसको लेके कांवड़ यात्रा करने वाले लोगों को आपत्तियां रहती हैं। इन सभी के संबंध में एक समग्र निर्णय लिया गया था और इसमें सभी से वार्ता की गई। जो भी होटल है, ढाबे हैं, ऐसी खाने पीने की चीजें उनको बताया गया है कि एक तो उसका प्रोप्राइटर कौन है, मालिक कौन है, उसका नाम और कार्य करने वाले लोगों का नाम और पहचान वहाँ पर इंगित हो। इसके साथ ही साथ वो रेट लिस्ट लगाए ताकि ऐसी भी कोई समस्या पैदा ना हो कि ओवर रेटिंग को लेकर कहीं मारपीट या विवाद की स्थिति पैदा होती है। इस संबंध में रेंज के 3 जनपदों में जो भी कांवड़ मार्ग है, सभी से मीटिंग कर ली गई है, सभी को बताया गया, सभी लोग इसके लिए सहमत हैं और इस संबंध में जितने भी होटल है, ढाबे हैं, बाकी चीजें हैं, वो सबकी मीटिंग में भी ये क्लियर कर दिया गया और इसमें कार्रवाई की जाएगी। पिछली बार कांवड़ यात्रा के दौरान एक विवाद सामने आया था। विवाद कांवड़ रूट पर बने ढाबों और दुकानों को लेकर था कि यहां पर दुकानदार अपने गलत नाम से दुकान चला रहे थे। खासकर से बात करें मुस्लिम दुकानदारों की, तो उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने दुकान और ढाबों के नाम लिखे थे, लेकिन उनके जो प्रोप्राइटर थे या अंदर काम करने वाले थे वो मुस्लिम थे। इस बात को लेकर जो कांवड़िये थे उन्होंने विरोध जताया था और विरोध न सिर्फ कांवड़ियों ने बल्कि प्रशासन के सामने जब बात गई तो प्रशासन ने भी इस पर सख्त रुख अख्तियार किया था। और इस बार पहले से ही प्रशासन ने इस बात की हिदायत दे दी है कि जो भी कांवड़ रूट के दौरान जो ढाबे हैं या दुकानदार हैं वो अपना सही नाम बोर्ड पे लिखेंगे, जिससे कांवड़ियों को किसी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर हाईवे पे एक ढाबे पर मौजूद है। ये देखिए, श्री श्याम ढाबा लिखा हुआ है यहाँ पर इसका नाम, और ये श्याम ढाबा देख के लग रहा है किसी हिंदू प्रोप्राइटर ही इसके होंगे। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसमें कोई दूसरा नाम तो नहीं है, इसके मालिक कोई और तो नहीं है, इसलिए इस तरीके के बोर्ड जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे और ये बोर्ड जो है वो प्रशासन की हिदायत के बाद यहाँ पे लगाए गए हैं।
Now, the political showdown over the Kanwar Yatra and the order around it only seems to be escalating. Now, in the latest, the Congress leader Pawan Khera has said that not only is this an attempt to divide Hindus and Muslims, it can also be an attempt to identify and discriminate against Dalits. Listen into his attack. साथियों, एक नया फरमान आया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। So going back to Adeep for that update, Adeep is speaking about the political reactions that are coming in, and this order is being interpreted in various ways. The Congress party says that it's not just divisive, but it also discriminates against Dalits. But the clarification that has come in from the BJP as well as the police officials is that one, it is voluntary, and second, it is to ensure that there is no law and order disturbance in the state during the yatra. Well, Pratibha, see, all the political parties are giving different kind of reactions on the Muzaffarnagar police order, whether it be Akhilesh Yadav or Congress Ajay Zais or Pawan Khera. They all are blaming Muzaffarnagar police, but Muzaffarnagar police has to say that we have passed this order just to maintain the law and order situation in Uttar Pradesh, in the Muzaffarnagar districts. A lot of Kanwar Yatris pass through that districts, and it's around 240 kilometers area in which the Kanwarias pass through that particular area, and for that we have passed this order, and it's a voluntary order. Those who want to put up their names, they can put first. They said that it's mandatory, and now just for the clarification, they are saying that it's a voluntary order and they can put up their names if they want, but it is all to ensure that law and order is maintained in the district. And Muzaffarnagar police also went on to say that this is not something new. This is what we have been doing in the past, and this is not a new order. Yes. We are just implementing it once again, as the Kanwar Yatra is set to begin from July 22nd. Okay, all right. Adeep, in fact, there's also, of course, a background to this controversy, because the last year during the Kanwar Yatra, religious guru Swami Yashvir Maharaj had also made a slew of serious allegations. He said that many owners of eateries who belong to the minority community hid their identity and displayed their posters with fake Hindu names, and due to this, the sentiments of the Shiva devotees, the Kanwarias got hurt. But the president of the All India Imam Association, Maulana Sajid Rashidi, has said that such decisions by the administration are aimed at creating a communal divide. जहां तक आईडीज की बात है, पहचान की बात है, सरकार मांग सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तरह के बयान आए दिन आते हैं। मुहर्रम को लेकर योगी का बयान आया कि जिसको पहले जो है ऐसा होता था, जब मुहर्रम मनता था तो रोड खाली हो जाते थे, तारें हट जाती थी, लोगों के घर गिरा दिए जाते थे। ये इस तरह के जो बयानात हैं, ये कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान कराने वाली पोजीशन है। Breaking up